Hello my dear students, welcome on my YouTube channel Academic Hub. Today we are going to start a new chapter in class 6 English literature, and that is chapter 4, Aladdin and the Wonderful Lamp. There once lived a poor tailor who had a son called Aladdin. A careless, idle boy, she would do nothing but play all day long in the streets with little idle boy like himself. This so grieved the father that he died, yet in spite of his mother's tears and prayers, Aladdin did not mend his ways. एक बार एक टेलर रहता था जिसके अलादीन नामक एक बेटा था। वो बहुत ज़्यादा केयरलेस और आलसी लड़का था और पूरे दिन खेलने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। वो अपने जैसे आलसी बच्चों के साथ खेलता रहता था गली में। दिस इज नो गिरी, और इसी दुख में उसके पापा एक दिन चल बसे। उनके पापा की डेथ हो जाती है, लेकिन पापा की डेथ के बाद भी वो उसमें कोई सुधार नहीं होता है। वो अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है और उसका जो तरीका होता है वो एज इट इज रहता है। One day when he was playing in the streets as usual, when a stranger asked him his age and if he were not the son of Mustafa the tailor. एक दिन जब वो गली में खेल रहा था तो एक अजनबी आता है और उससे उसकी उम्र पूछता है और पूछता है, क्या आप मुस्तफा टेलर को जानते हो? I am sir, replied Aladdin, but he died a long while ago. वो कहता है, हाँ मैं मुस्तफा का ही बेटा हूँ, लेकिन वो काफी समय पहले उनकी डेथ हो चुकी है। On this the stranger who was famous magician fell on his neck and kissed him, saying, I am your uncle and knew your from your likeness to my brother. Go to your mother and tell her I am coming. Aladdin ran home and told his mother of his newly found uncle. वो कहता है कि वो उसके नेक पे किस करता है, प्यार करते हुए उससे बोलता है। वो एक फेमस मैजिशियन होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे डैडी मुझे जानते थे और मैं तुम्हारा अंकल हूँ। और अब जाओ अपनी मम्मा से कहना कि अंकल आएंगे, मैं आ रहा हूँ। अलादीन जो है वो भाग कर जाता है और अपने नए अंकल के बारे में अपनी माँ को बताता है। Indeed, child, she said, your father had a brother, but I always thought he was dead. वो उसने कहा, हाँ इंडीड चाइल्ड, हाँ बच्चा। उसकी माँ कहती है, मैं जानती थी कि तुम्हारे पापा के एक भाई थे, लेकिन वो मर चुके हैं, मैं ये समझती थी। However, she prepared supper and told Aladdin to cook for his uncle, who came with wine and fruit. He presently fell down and kissed the place where Mustafa used to sit, telling Aladdin's mother not to be surprised at not having seen him before, as he had been 40 years out of the country. अब वो उसकी माँ को बताता है कि आप मुझे नहीं जानती होंगी क्योंकि मैं 40 साल पहले चला गया था, भाई से झगड़े की वजह से मैं बाहर चला गया था और आप इसलिए मुझे नहीं जानती होंगी। तो वो आता है, वाइन लेकर आता है, कुछ फ्रूट्स लेकर आता है और जहाँ पे मुस्तफा बैठा करता था उस जगह को चूमता है और वो ऐसे शो करता है कि हाँ वो रियल में उनका अंकल है। He then turned to Aladdin and asked him his trade, at which the boy hung his head while his mother burst into tears on learning that Aladdin was idle and would learn no trade. He offered to take a shop for him to stock in merchandise. Next day he bought Aladdin a fine suits of clothes and took him all over the city, showing him the sights, and brought him home at nightfall to his mother, who was overjoyed to see her son so fine. उससे पूछता है कि अलादीन कुछ करता है या नहीं, तो वो बताती है कि ये कुछ नहीं करता है और इसने अपने पापा का जो व्यापार था उसको भी खत्म कर दिया, मतलब उस शॉप पर भी नहीं बैठा। तो वो कहता है कि मैं कल ही जाऊंगा और इसके लिए कुछ सामान लेकर आऊंगा, और वो सूट वगैरह और कपड़े वगैरह लेकर आते हैं और उसे
नई जो जगह होती है वो दिखाते हैं कि यहाँ यहाँ जाना और अपना बिजनेस संभालना। The next day, the magician led Aladdin into some beautiful gardens, a long way outside the city gates. They sat down by a lovely fountain, and the magician pulled a cake from his girdle, which he divided between them. अगले दिन अलादीन को वो एक ब्यूटीफुल गार्डन में लेकर जाता है, तरह तरह के गार्डन्स दिखाता है, और वो एक जगह बैठ जाते हैं एक फाउंटेन के पास, और वहां पर वो केक लाता है, अपने जादू से केक निकालता है और उसको 2 भागों में डिवाइड करता है, आपस में मतलब बांट लेता है। Then they journeyed onwards till they almost reached the mountains. और वो चलते जाते हैं और वो पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं, मतलब माउंटेन्स के पास पहुंच जाए। अलादीन was so tired that he begged to go back, but the magician wiggled him with pleasant stories and led him on the spite of himself. अब अलादीन कहता है, वो थक चुका होता है चलते चलते, वो कहता है मुझे घर जाना है, लेकिन जो मैजिशियन होता है वो उसे अपनी बहला लेता है अपनी बातों से और स्टोरी तरह तरह की सुनाने लगता है, और कहता है अभी नहीं, अभी हम घर नहीं जाएंगे। As last they came to 2 mountains divided by a narrow valley. उसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ 2 पहाड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता जा रहा होता है। We will go no further, said the false uncle. उस झूठे अंकल ने उससे कहा कि अब हम बहुत ज्यादा दूर नहीं चलेंगे, बस आ गए, जहाँ हमें जाना था वो जगह आ चुकी है। I will show you something wonderful. Only if you gather up sticks while I kindle a fire. While I kindle a fire. वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाऊंगा और तुम्हें कुछ स्टिक्स लानी होगी जिसपे मैं एक मतलब उस पे आग जलाऊंगा स्टिक्स से, तुम्हें कुछ स्टिक्स इकट्ठी करनी है। When it was lit, the magician threw on it a powder he had about him, at the same time saying some magical words. The earth trembled a little and opened in front of them, disclosing a square flat stone with a brass ring in the middle to raise it by. जैसे आग जलती है वो कुछ पाउडर उस पर डालता है, एक पाउडर छिड़कता है और कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलता है। जब वो मैजिकल वर्ड्स बोलता है जो मैजिशियन, उसके बाद क्या होता है, अर्थ जो है वो हल्की सी फट जाती है बीच में से जमीन, और उनके सामने एक ओपन होती है जगह, उस पे एक पत्थर रखा होता है बड़ा सा और एक रिंग होती है ब्रास की। अलादीन tried to run away, but the magician caught him and gave him a blow that knocked him down. अलादीन भागना चाहता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है वो मैजिशियन। अलादीन What have I done, uncle? उसने कहा लेकिन अंकल मैंने क्या किया है। He said piteously. उस बड़ी दयालुता से वो दयनीय स्थिति में बोलता है उससे। Whereupon the magician said more kindly, fear nothing but obey me. उसने कहा डरो मत, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जाओ। Beneath the stone lies a precious treasure which is to be yours and no one else may touch it. So you must be exactly as I tell you. Yes. वो कहता है कि डरो मत और इस स्टोन को हटा के देखो, उसके नीचे एक खजाना है और वो खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं छू सकता है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ। At the word treasure, Aladdin forgot his fears and grasped the ring as he was told, saying the names of his father and grandfather. अब जैसे ही वो खजाने का नाम सुनता है तो वो अपना सारा डर भूल जाता है और वो अपने पापा और बाबा का नाम लेते हुए उस रिंग को उठा लेता है। The heavy stone came up quite easily and some steps appeared. जैसे ही वो रिंग को हटाता है तो वो पत्थर अपने आप वहां से हट जाता है और कुछ सीढ़ियां नीचे के लिए बनी हुई दिखाई देती हैं। Go down, said the magician. At the foot of those steps you will find an open door leading into 3 large halls. नीचे जाओ, उस मैजिशियन ने अलादीन से कहा नीचे जाओ और तुम्हारे नीचे कदम रखते ही तुम्हें एक दरवाजा खुलेगा और जहाँ पर 3 बड़े बड़े हॉल होंगे। Tuck up your gown and go through them without touching anything, or you will
डाई इंस्टेंटली। बिना किसी चीज को टच करे हुए धीरे धीरे अंदर जाना। अगर तुमने किसी चीज को टच किया तो तुम मर भी सकते हो। दीज हॉल्स लेड इनटू अ गार्डन ऑफ फाइन फ्रूट्स ट्रीज। उसके बाद ये हॉल एक गार्डन में तब्दील हो जाएगा, मतलब गार्डन में परिवर्तित हो जाएगा फ्रूट गार्डन में, और वो फ्रूट्स के ट्रीज होंगे वहां पर। वॉक ऑन टिल यू कम टू अ शेल्फ इन अ टेरेस वेयर स्टैंड्स अ लाइटेड लैम्प। pour out the oil it contains and bring it to me। उसके बाद तुम क्या देखोगे कि टेरेस पर जाओगे तो वहां पे एक जलता हुआ लैंप होगा। where stands a lighted lamp, वहां पे एक जलने वाला लैंप होगा, और तुम वहां जाकर उसमें ऑयल डालना और उसे मेरे लिए लेकर आना। He drew a ring from his finger and gave it to Aladdin। उसने अपनी फिंगर से एक रिंग उतार कर अलादीन को दी। अलादीन फाउंड एवरीथिंग एज द मैजिशियन हैड सेड, गैदर्ड सम फ्रूट ऑफ द ट्री एंड हैविंग गॉट द लैम्प अराइव्ड द माउथ ऑफ द केव। द मैजिशियन क्राइड आउट इन ग्रेट हरी। उसके बाद जैसे जैसे वो कहता गया वैसे वैसे उसने किया। कुछ फ्रूट्स कलेक्ट किए, उस जो वहां पर गार्डन बन गया था उसने ट्रीज से कुछ फ्रूट्स कलेक्ट किए। उसके बाद उसने लैम्प को देखा, लैंप पा लिया। लैंप को पाने के बाद उसने देखा, अब वो कह रहा था, मैजिशियन बाहर से ही बोलता है कि जल्दी आओ, बहुत जल्दी से मुझे वो लैंप दे दो। मेक हैस्ट एंड गिव मी द लैंप। द अलादीन रिफ्यूज टू डू अंटिल ही वॉज आउट ऑफ द केव। अब उसने कहा, अलादीन ने भी कह दिया कि जब तक वो गुफा से बाहर नहीं आ जाता तब तक वो आप लैंप नहीं देगा। The magician flew into a terrible anger and throwing some more powder on the fire। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है मैजिशियन और पाउडर थोड़ा सा और डालता है उस आग पर। He said something and the stone rolled back into its place। अब वो क्या होता है कि जैसे उससे पाउडर डाला और कुछ वर्ड्स कहे, वो स्टोन फिर से अपनी जगह आ जाता है और वो उस केव का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। द मैजिशियन लेफ्ट पर्सिया फॉर एवर। अब जो मैजिशियन था वो पर्सिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। विच प्लेनली शोड दैट ही वॉज नो अंकल ऑफ अलादीन। इससे ये प्रतीत हो गया था कि वो अलादीन का कोई अंकल नहीं था बल्कि एक मैजिशियन ही था। बट अ कनिंग मैजिशियन, एक चालाक मैजिशियन था। हु हैड रीड इन हिज मैजिक बुक ऑफ अ वंडरफुल लैम्प, जिसने अपनी मैजिक की बुक में पढ़ा था कि एक वंडरफुल लैम्प है विच वुड मेक हिम द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, जो कि उसे संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य बना सकता है। तो ही अलोन न्यू वेयर टू फाइंड इट। और वो अकेला ऐसा था जो जानता था कि उसे कैसे पाया जा सकता है। ही कुड ओनली रिसीव इट फ्रॉम द हैंड ऑफ अनदर। वो किसी और के द्वारा केवल उसे हासिल करना चाहता था उस लैम्प को। He had picked out the foolish Aladdin for this purpose। इसलिए उसने उस foolish अलादीन को इसके लिए चुना। Intending to get the lamp and kill him afterwards। उसका ये मकसद था कि वो अलादीन के द्वारा उस लैम्प को हासिल कर लेगा और उसके बाद उसे मार देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसे अवश्य लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड bye bye, take care।